ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ମେମ୍ବର ବନନ୍ତୁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହେବ। ଇତିହାସରେ ଏହା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପଦ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ମ। ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ମ ଆସୁ ଆସୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପକ୍ଷ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଶାହାଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଖତରାରେ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କ କେସ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟତା ହରାଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଜୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପଦରେ ଥାଇ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ୍ ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଲେଖେ। ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ ତାର ଲେଖାରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାଲ ଠାକରେଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛି ନବଭାରତ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ୍ରେ ଲେଖା ବାହାରିଛି, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ହେବ ରଦ୍ଦ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ୍ ଲେଖୁଛି। ମୋଦିଜୀ ଶାହାଜୀଙ୍କ କେସ୍ କ'ଣ? ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିପକ୍ଷ ମଜବୁତିର ସହ କେସ୍ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ଚାଲିଯିବେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ସଜା ଦେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କଲର୍ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଚୁନାବ ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କହି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ କହୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚୁନାବ ଆଚାର ସଂହିତା। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଚାହିଁଲେ ୟାର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ୟୁପି ଅଦାଲତରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲିଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ସେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସଦନ ଭିତରେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଟ୍ରୋସିଟିର ମାମଲା ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସେସନ୍ କେସ୍ ବନିଯାଏ। କାରଣ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଅପମାନ ଭାରତବର୍ଷର 95% ଲୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦିଲର ଧଡ଼କନ ଏବଂ ସେ ଭାରତର ଧରୋହର। ସେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅଦାଲତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହୁଏ, କେସ୍ କିଏ କରନ୍ତି? କେଉଁ ମସିହାରେ? ଆପଣ ଜାଣିବେ 1971 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାୟବରେଲି ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି ରାଜନାରାୟଣ। ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ରାଜନାରାୟଣ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜିତିଯାଆନ୍ତି।
किंतु राजनारायण अलाहाबाद हाईकोर्ट चली जाती और इंदिरा गांधी विरुद्ध केस फाइल करती। मामला रुजु हुए कौन पाई? इंदिरा गांधी जी को सही समय भूल कौन था? से कौन आरोप करते? से आरोप एमती किसी खतरनाक आरोप नाला। जदि आज तारीख में आम देखा आरोपटी थिला जे इंदिरा गांधी जी सरकारी ऑफिसर कापुर को इलेक्शन एजेंट रूप व्यवहार करती एवं चुनाव सभा जो टेंट आनी जो विद्युत व्यवहार करा जाइथला ताहा सरकार टंकार होइथला। ए प्रकार अभियोग लगे थे राजनारायण जी। यह प्रमाण हो गला एवं इंदिरा गांधी जी का सदस्यता चलीगला। तो इंदिरा गांधी जी पावर थिला बेले कोर्ट सामने कि प्रकार भाव पेश होते आउ अदालत तांकु कि प्रकार सम्मान देइथला ताहा आमे जानिबा निहाती दरकार। कारण इतिहास पन्ना खोलिबा आवश्यक। कानून आगरे समस्त समान। भारत संविधान आर्टिकल 14 भी कहे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, समस्त समान। तो सही समय रे अलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आर्टिकल 14 पालन करथिले ना करि नथिले। जस्टिस किए थे? अलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस था जगमोहन लाल सिन्हा एवं केसटी को लड़ुले एडवोकेट शांति भूषण प्रशांत भूषण जी का फादर। इंदिरा गांधी जी अदालत रे आसंती से समय जगमोहन सिन्हा जी जस्टिस जगमोहन सिन्हा आदेश देते इंदिरा गांधी जी को अदालत भितर बसिया चेयर दिज्व नहीं बा किए ठिया हेबे नहीं। समय 10:30 इंदिरा गांधी जी अदालत भीतर को आसती। इंदिरा गांधी जी अदालत भीतर को आसला बेले तांकु मेटाल डिटेक्टिव बा मेटाल डिटेक्टिव देकी गति करिया पड़िथला काले से कौन सी हथियार बा जेकोसी जिनस धरिकी जाइथिबो जोटा कि अदालत से प्रकार घुसिबा मना। साधारण नागरिक पर तांको जीवाक पड़िथला एवं से कोर्ट हॉल रे पूरी समस्त चुपचाप चेयर रे बसिथिले, केही भी उठिले नाही। भारत प्रधानमंत्री कोर्ट हॉल रे जाउछंती। कोर्ट हॉल रे बसिथिबा लोक माने एडवोकेट माने एवं साधारण पब्लिक भी बसी थांती, केही भी उठिले नाही कि इंदिरा गांधी जी को चेयर मध्य मिलेला नाही। इंदिरा गांधी जी साधारण नागरिक भावे कोर्ट हॉल भीतर पुरंती। जितेबाला से कोर्ट रूम रे एंट्री हुंती से हाथ जोड़ी नमस्कार करती चेयर को, अदालत को, चीफ जस्टिस को, जस्टिस मोहनलाल सिन्हा को हाथ जोड़ी अभिवादन नमस्कार करती और से चेयर को अभिवादन जनाती, मुंड भी नुआंती। यह न्यायर परंपरा। कारण जस्टिस जो चेयर रे बसंती सिठी अशोक स्तंभ लगी था अन्य कौन लोक ऑफिसर चेयर रे अशोक स्तंभ लगे ना। न्याय डिस्चार्ज कला बेले जस्टिस जो चेयर रे बसंती कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिक जो तीनोटी अंग सिंबल लगी था भारतर एम्ब्रम। तेणु से चेयर को समस्ते नतमस्तक करने पड़े। एथि जना पड़े जे प्रधानमंत्री भी संविधान उपरे नुह, संविधान ही सर्वोपरि। इंदिरा गांधी जी का एडवोकेट रिक्वेस्ट करती। रिक्वेस्ट क्रमे इंदिरा गांधी जी को चेयर खंड मिलता है। पुणी कोर्ट आदेश आसे इंदिरा गांधी जी को काठरगढ़ को जावाई। जमी साधारण कैदीटीए काठरगढ़ को जाता है ठीक से हीपरि इंदिरा गांधी जी को काठरगढ़ को जावाक पड़ता। याद रखंतु से समय इंदिरा गांधी भारत प्रधानमंत्री चेयर रे थिले। मंत्री पद तांको हाथ रे थिला और तांको सरकार थिला। इम्यूनिटी पावर खतरनाक था। जेकोसी व्यक्ति जितेबाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर बा राज्यपाल परी पदर था से समय पाखे इम्यूनिटी पावर अधिक थाए।
जुडिशियल एक्शन बा कानून एक्शन नेबा पाई लोक डरती, एग्जिक्यूटिव डरी थाए, किंतु सेदिन एग्जिक्यूटिव डरी नथिला, सेदिन जुडिशियरी डरी नथिला। इंदिरा गांधी जी को विरुद्ध रे केस होता एवं इन्वेस्टिगेशन भी प्रोपरली होता। कोर्ट आदेश दियंती इंदिरा गांधी जी को काठरगढ़ जावाई, आउ इंदिरा गांधी जी काठरगढ़ को जाती, तांको जेरा करा जाए, तांको जेरा करती एडवोकेट। जेरा करने समय रे से टिके नरमी जाती, प्रायतः सब क्वेश्चन रो उत्तर से दे दियंती, किंतु एमती किसी क्वेश्चन आसी जाए शांतिभूषण के द्वारा, एडवोकेट शांतिभूषण के द्वारा से नर्वस हो जाती, उसे आंसर देवाई असहज मन करती। चिंता करंतु न्याय द्वार केते खतरनाक। जदि आप भूल करती भारत प्रधानमंत्री हेले भी से छाड़े ना। 5 घंटा पर्यंत इंदिरा गांधी जी को कोर्ट हॉल रे रहिबा को पड़े, जस्टिस को सामना, एडवोकेट को प्रश्न उत्तर सामना करती। और केस परिणाम कौन हुए जानी? केस परिणाम इंदिरा गांधी जी को विरुद्ध रे जाए, कारण से संपत्ति से इलेक्ट्रिक को सरकारी विद्युत को से मिसयूज करते, इलेक्शन प्रचार रे यूज करते। द्वितीय जिनस जो टेंट से यूज करते, सरकारी खर्च रे यूज करते। आउ गोटे जिनस से सरकार ऑफिसर को इलेक्शन एजेंट रूपे व्यवहार करते। साधारणतः इलेक्शन एजेंट सरकारी ऑफिसर हो पारते ना, किंतु तांको से कर देइथिले। फलस्वरूप से राइट ऑर्डरटा इंदिरा गांधी जी को विरुद्ध रे जाइथिला जजमेंट, एवं तांकर सदस्यता रद्द होइथिला। आप तो जानी वर्तमान समय केते हिंदू मुस्लिम होउछि, आचार संहिता को केते भायोलेशन करा जाउछि तार सीमा नहीं, फिर भी कहार सदस्यता है रद्द होना। आज भारतवर्ष रे कौन जस्टिस बा कौन कार्यपालिका चेयर रे बसी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, गवर्नर जेकोसी पोस्ट थी मामूली एमएलए और एमपी को मध्य अरेस्ट करिबारे असक्षम मन करुछि। चिंता करंतु हमर कार्यपालिका को अवस्था को गलानी। न्यायपालिका को एते स्वतंत्र दिया जाइथिले भी न्यायपालिकार बेले बेले न्यायपालिका डगमगी जाउछि, दोहली जाउछि, जोटा कि डेमोक्रेसी पाई बेसी चिंतार विषय। वर्तमान बॉम्बे हाईकोर्ट उपरे रहिला, बॉम्बे हाईकोर्ट कौन फैसला देव से फैसला उपरे निर्भर योग्य। जदि बॉम्बे हाईकोर्ट मोदी जी को विरुद्ध रे फैसला दे दिए, ताहले मोदी जी की सदस्यता यथाशीघ्र चलीज एवं से प्रधानमंत्री पोस्ट रु ओहरिबा बाध्य हेबे। अमित शाह जी जदि बाबा साहेब अम्बेडकर को केस रे तंग सजा हुए, ताहले से सदस्यता हराइबे, लोकसभा सदस्यता हराइबे। तो वक्त कौन कहे समय ही कहब। आपण मैंने देखुं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयापूर्वक सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन निश्चय दबा।